Welcome to Local Market Review Business Talk Show. Today our guest is Dr. Joby. He is a consulting psychologist and he is practicing hypnosis also. I am so excited to talk with Dr. Joby about his professional experience. Hello sir. हाय हेलो. कैसे हैं आप? बढ़िया. आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ सर. सर आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए. बिल्कुल बिल्कुल. My name is Dr. Joby. By profession, I am a psychologist. For Meraki Mind Care, I am the creative head. Actually, I born and brought up in Kerala. Okay sir. And last 19 years I am in Bhilai. I completed my post-graduation MPhil PhD in psychology from Pandit Ravishankar Shukla University. And I always interested to do experimental research. Okay. That is a simple description about me. ओके सर. तो सर जैसे हमने एंटर किया हमने देखा कि आपके सेंटर का नाम मेराकी माइंड केयर सेंटर था. Yes. तो सर प्लीज़ आप हमें ये बताएंगे कि मेराकी वर्ड का मतलब क्या होता है. Very good question. Actually, Meraki is a Greek word. वो नॉर्मली यूज़ करते हैं हम अपना कोई भी काम करने के टाइम. When you are doing something, you are putting a piece of yourself into that, like your soul, your creativity, or your love into your job. A piece of yourself into your job. That is its meaning. So I am doing this mental health care from my passion, with my soul, with my creativity, and with my love. So that's why I choose this word to our center. Okay sir. And sir, what is the mission of Meraki Mind Care? Mission, our main mission is to introduce latest sophisticated training program for teachers, students, and all the needed people, how to enhance their potential into a greater level. Okay. तो सर मेराकी माइंड केयर का विजन क्या है? Vision. The vision of Meraki Mind Care is to enhance mental health of the people around Bhilai and Chhattisgarh region by mind power, NLP and hypnotherapy techniques. ओके सर. सर आप हमें ये बताइए कि मेराकी माइंड केयर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? Services. Meraki Mind Care offers psychological counseling, जी. pre-post marriage counseling, ओके. and we are using NLP techniques for healing, boosting, reframing, and wheel of life, circle of excellence, and other important area we are choosing is hypnotherapy. Hypnotherapy we are using here for age regression, blueprint correction, and past life regression. Another important area we are focusing is training programs. We are providing mind mastery training program, global scholar students workshop, stress management training program, and one of the most important area we are focusing is dermatoglyphic analysis for multiple intelligence or DMIT career counseling, and we are doing complete personality assessment through dermatoglyphic analysis. These are the major area we are covering under this roof. ओके सर. आपने काफ़ी कुछ बताया बट मुझे एक में डाउट है ब्लूप्रिंट करेक्शन. तो प्लीज़ आप हमें ये बताएंगे कि ब्लूप्रिंट करेक्शन क्या होता है? Actually that we are using in hypnotherapy. Blueprint correction मैं आपके लैंग्वेज में समझा दूंगा. ओके. Your name is Marina. Marina, are you married? नो नो आई एम नॉट मैरिड. ठीक है. Marina, अभी very soon you are going to get married. Is it right? यस सर. Okay. आपका घर में मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ आपका घर में आपका पिताजी को एक महीना 10,000 रुपये इनकम है एंड यूर घर का कल्चर यही रहते हैं अगर 10,000 रुपये आपको इनकम आ गया तो उसमें से 9,000 रुपीज़ मीन्स ऑलमोस्ट 90% आप लोग खर्चा करेंगे और 10% ओनली यू विल कीप एज ए सेविंग. और आप जो शादी करने वाला लड़का उनका घर में ऐसे हैं उनका घर में अगर 10,000 रुपया इनकम आया तो उसमें से 70% दैट मीन्स 7,000 दे विल सेव, ओनली 30% ओनली दे विल स्पेंड.
देन दोनों को शादी हो गया। तो शादी हो गया, तुम वहाँ गया, तुमको भी नौकरी है, तू अपना एर्निंग्स है, जैसे तुम्हारा 10,000 रुपीज़ एर्निंग्स आया, तुम क्या करते हैं, अपना मनपसंद की कपड़ा लेंगे, जो भी लेना चाहते हैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट्स में जो नया मोबाइल आ गया, सेल आ गया, तुम खरीद लिया। तो तुम्हारा इंटरेस्ट यही है, बिकॉज यू नो लाइफ इज़ टू एन्जॉय। सो 90% ऑफ द earnings you are spending. At the same time, the boys is thinking, I have to spend only 30%. Means only 3,000 I have to spend. Remaining money I have to keep as a saving. तो तुमको दोनों के बीच में डिस्प्यूट आना चालू हो गया, बिकॉज वाट एवर द मनी यू आर अर्निंग यू आर स्पेंडिंग एंड ही इज कीपिंग ऑल द थिंग्स एंड यू आर फीलिंग ये बहुत कंजूस है एंड ही इज फीलिंग अरे ये बहुत लैविश है। तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट आना चालू हो गया और अपना पेरेंट्स आपको समझाने का कोशिश किया और अपना रिस्पेक्टिव रिलीजियस मेंबर्स आपको समझाने का कोशिश किया, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ और किसी ने आपको मेरे पास लेके आया सपोज। तो मैं आपको बात करके मुझे समझ में आएंगे आपका अंदर का ब्लूप्रिंट, आपका घर का ब्लूप्रिंट है। आपका घर में क्या चल रहा है, 10,000 रुपये मिलेगा तो 9,000 रुपीज़ खर्चा करना है, और बॉय का घर का क्या था, 100 रुपीज़ में 70 रुपीज़ आपको सेव करना है, 70%, ओनली 3,000 रुपीज़। तो उनका मन में क्या लग रहा है, जैसे आप उनका पैसा खर्चा करना बढ़ाने का कोशिश करने का टाइम उनका मन में क्या फील हो रहा है, ये लड़की आने के बाद मेरा लाइफ का सिक्योरिटी पूरा खत्म हो गया। और आपका मन में क्या फील हो रहा है, मेरा शादी होने के बाद मेरा फ्रीडम पूरा खत्म हो गया। ऐसा मैं क्यों, मैं मेरा लाइफ जीना है, मैं ऐसा नहीं हूं। तो इसमें एज ए साइकोलॉजिस्ट आई अंडरस्टूड बोथ पीपल आर हैविंग डिफरेंट ब्लूप्रिंट विथ कंट्रोवर्सी। तो मुझे दोनों को अपना ब्लूप्रिंट में करेक्शन करना है। मतलब फॉर यू आई विल करेक्ट 90% expense per month is not very good. You should have some saving for your life. And similarly I will correct his blueprint. आप इतना कंजूस भी मत हो, लाइफ इज टू एन्जॉय। तो अपना 30% के बदल आप अपना एक्सपेंस 60% में कन्वर्ट कर लीजिए, तो दोनों को अपना लाइफ अच्छे से समझा सकते हैं, अपना स्मूथली यू कैन रन योर लाइफ। बट ये बात मैं आप लोगों को नॉर्मल काउंसलिंग में समझा देंगे ना, तो आपको एक हफ्ता अपना मन में रहेगा, बट आफ्टर दैट इट विल गो अवे फ्रॉम योर माइंड। With the help of hypnotherapy, if I am doing that, it will go deeply into your subconscious mind and that will remain forever. So with the help of hypnotherapy, I can help you for this problem permanently. So for that purpose, we are using blueprint correction. बहुत अच्छा सवाल था आपका, बहुत अच्छे से यूज़ होता है ये। ओके सर, थैंक यू। तो सर हमें आप ये बताइए कि दूसरे हेल्थ केयर सेंटर से मेराकी माइंड केयर सेंटर कैसे यूनिक है? वेरी गुड। एक्चुअली मेराकी माइंड केयर इज ऑलवेज यूनिक बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग a variety of psychological procedures under one roof, like hypnotherapy, advanced dermatoglyphic analysis, NLP, psychological counseling, pre-marriage, post-marriage counseling under one roof. And we have a policy, those who are entering to Meraki Mind Care with some problem, we will guarantee to them, we will give our best, and if they are not satisfied, they have all the right to get back what is the amount they spend for registration. Without any question, without single bad feeling, we will refund them all, because we are that much confident about what we are doing. We are giving the best available tools and best modern techniques we are applying. So we have the confidence, if we are taking one case, we will completely evaluate. After that, if we have confidence, then only we will proceed. So in that way, we are unique from all other mental health centers. ओके सर। सर ये मेराकी माइंड केयर सेंटर जो है, इसका कोर स्ट्रेंथ क्या है? Core strength, actually we are focusing mostly in multiple intelligence analysis, advanced dermatoglyphic analysis, Okay. and hypnotherapy.
These are the three different area we are following, and these three are connected to one another. ओके सर, तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस क्या है? Multiple intelligence analysis. Okay, actually the previous, suppose in 19th century, Alfred Binet introduced the concept of intelligence quotient, and that was worldwide accepted in large scale. And later, one of the main area of IQ, मतलब intelligence quotient, he was calculating or he was finding by only using logical intelligence and linguistic intelligence. Later, एक renowned educational psychologist, Dr. Howard Gardner from Harvard University, introduced our intelligence. He divided into 8 different categories. Suppose logical, intrapersonal, interpersonal, kinesthetic, visual, linguistic, musical, and naturalist. These are the 8 different intelligence Howard Gardner introduced, and he's telling every person will have these 8 intelligence in various distribution. Means एक जन के पास लॉजिकल ज़्यादा रहेगा तो दूसरा कम रहेगा, ऐसी मतलब इट विल बी देयर बट द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके. तो सर क्या आप मुझे इसके बारे में और थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कर सकते हैं? Sure, why not? Okay, I will tell you. एक person is, suppose linguistic intelligence is very high among the distribution. Linguistic intelligence is very high. That means that person's the expression is very high. Actually, linguistic intelligence means communicate your inner core to the outer world. Means communicate your inner core. आपका अंदर क्या है वो आप दुनिया को कैसे communicate कर रहे हैं. Communicate your inner core to the outer world. That is what is expression. Yes sir. So shall I ask one question? Yes sure. How you express yourself? मैं अपने बातों से खुद को एक्सप्रेस करती हूँ, मतलब अगले से खुद के बारे में बता के या अपनी फीलिंग्स के बारे में बता के खुद को एक्सप्रेस करती हूँ. Okay. Actually, expression can be in 3 different ways. One, what you told, that is verbal communication. Okay. Another one is written communication. And the third one is gestures. Okay. Gestures means action by making movements on hands and head. So these are the 3 ways to express your inner core to the outer world. Yes. जैसा कि आपने बताया रिटन, वर्बल एंड जेस्चर, तो इन तीनों को आप किसी और कुछ एग्जाम्पल देके आप इसे और डीपली समझा सकते हैं क्या? Oh, why not? सपोज हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको ही एग्जाम्पल ले लेते हैं. Okay. जैसे आप अपने आप को बोल दिया, आपका एक्सप्रेशन, आप अपना इनर कोर को कम्युनिकेट करते हैं विथ वर्बली. श्योर ना? ओके. आप यू आर गोइंग टू मैरी ए पर्सन, and if that person's linguistic also very high, your linguistic intelligence is also very high. That's why you are highly expressive through words. Verbal means थ्रू वर्ड्स, शब्दों के साथ आप अपने अंदर का फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले. बट आपका होने वाला पतिदेव, he is also having very high intelligence, linguistic intelligence, but fortunately or unfortunately his expression is written. Okay. Yes, sir. Then he will express his feeling through text or in written way, and he will not be happy to listen your verbal communication. So क्या होता है, आप उनको जब टाइम मिलेगा उनको बात बताने के लिए रहता है, उनको सुनना उतना अच्छा नहीं लगता है. और उन्होंने जब टाइम मिलेगा तो उनको जो फीलिंग ना लिख के आपको बताना चाहते हैं, आपको पढ़ना पसंद नहीं है. तो क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग. तो उसके बीच में क्या होगा, एक दूसरा एक एडिशनल प्रॉब्लम आता है. जैसे आपको बात करना बहुत अच्छा लगता है, सपोज आप अपना एक दोस्त
दोस्त मिला है, मतलब पुराना दोस्त है, जो भी नया दोस्त है, तो आप उनसे मिलने के टाइम बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो भी आपका बात सुन के बहुत अच्छे से आपसे बात करते हैं, तो आपका इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी उनसे हो सकते हैं, क्यों आपका विचार उनके साथ मिल रहे हैं, Yes. आप जैसे बोल रहे हैं वो भी अच्छे से जवाब दे रहे हैं, तो आपको उनके साथ एक अच्छा रिलेशन, मतलब पॉजिटिव वे में मेंटली, तो आपको हस्बैंड को मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं आपके बारे में। सिमिलरली आपका हस्बैंड, मतलब जो होने वाले हैं, उन्होंने भी अपना राइटिंग के थ्रू कोई दोस्त से मिला, वो बार बार उन लोग को आपस में व्हाट्सएप मैसेज आते रहते हैं, क्योंकि इनका जो फीलिंग राइटिंग से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसका फ्रेंड भी उनका फीलिंग राइटिंग से एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो दोनों को इंटेलेक्चुअल मैच हो रहे हैं। तो आपको भी उनके बारे में डाउट हो सकते हैं और उनको भी आपके बारे में भी डाउट हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में अपना एक्सप्रेसिव इंटेलिजेंसीज दोनों को अलग अलग है, तो उसी वजह से दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसी में साइकोलॉजिस्ट कैसे हेल्प करते हैं, साइकोलॉजिस्ट दोनों को बिठा के समझा देंगे, देखिए आपका एक्सप्रेशन इज लाइक दिस, यू आर ए वर्बल एक्सप्रेसिव पर्सन एंड योर हस्बैंड इज ए रिटन एक्सप्रेसिव पर्सन, सो यू शुड गिव टाइम टू रीड व्हाट इज राइटिंग, ही इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ बाय राइटिंग। एंड आपको जो होने वाला पतिदेव को मैं समझाऊंगा, आपका बीवी का आदत है एक्सप्रेशन थ्रू वर्ड्स एंड वर्बली, तो उनके लिए सुनने का भी आपको टाइम देना है, वो अपना आपको समझाना चाहते हैं आपको बता के, तो आप जब टाइम दोगे आपका ये दोनों को प्रॉब्लम कंप्लीटली दूर हो जाता है। सो बाय दैट वे मल्टीपल इंटेलिजेंस विल हेल्प यू इन सेवरल वेज। दिस इज आई एम टॉकिंग ओनली विथ ए सिंगल लिंग्विस्टिक एंड इंटेलिजेंस। और एक एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ आपको, जैसे क्लास में, तो आप अपना स्कूल में जैसे एक टीचर एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एक बच्चा तुरंत उसको आंसर देते हैं, जो भी टीचर पूछते हैं एक्सप्लेन करने के बाद तुरंत कोई भी सवाल पूछते हैं, एक बच्चा तुरंत उसको आंसर देते हैं। वही क्लास में दूसरा एक बच्चा था, वो कोने में बैठे रहते, तो टीचर भी बोलते ये गुड फॉर नथिंग, कोई काम का नहीं है। बट एनुअल एग्जाम हो गया, क्या हो गया, ही द बॉय हु सिटिंग इन द कॉर्नर, ही इज द टॉप ऑफ दैट अकादमिक सेशन। तो इसमें कैसा हो गया होगा, उसका रिटन स्किल अच्छा रहा होगा इसलिए। एक्चुअली जो बच्चा का दोनों को इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छा था, बट जो क्लास में जो जवाब देते हैं ना, उनको वर्बल कम्युनिकेटर है, तो टीचर को सामने जल्दी दिख जाते थे, बट जो कोने में बैठने वाला रिटन कम्युनिकेशन है, एग्जाम तो रिटन कम्युनिकेशन वाले का हाथ में है, तो वो रिटनली जो उनको समझा, अपना अंदर जो चीज है बहुत अच्छे से एक्सप्रेसिव किया, तो उसको रिटर्न के कारण उनको अच्छा टॉपर हो गया। ये वर्बल वालों को लिखना नहीं आता है, उनको बोलना आता है अच्छे से, तो he become failure in the academic, failure in the sense he is not the topper, I am not telling he failed, but he is not in the top, he is not in the creamy layer. Why it is happened, that because his expression is through verbal, that is no value in academic session, so that's why people then that boy become depressive हो सकते हैं। Yes, sir. तो this can be pointed out with the help of this multiple intelligence analysis. Okay, sir. Similarly, we can use in several ways. There are variety of usage. No, it will time taking, but I am telling just for this. So it will be very useful if you are doing your multiple intelligence analysis. Okay, sir. So जैसे आपने बताया अभी एक एग्जाम्पल जो आपने दिया स्कूल के स्टूडेंट का, मतलब ऐसा भी हो सकता है, इस नज़रिए से भी हम देख सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। और मेरे दिमाग में तो यही था कि जैसे अगर कोई बहुत शांत है, रिप्लाई नहीं दे रहा है स्कूल में टीचर्स को, तो वो अच्छा नहीं पढ़ता है, वो अटेंटिव नहीं है क्लास में। बट ये जानकर, ये पहली बार जानी मैं कि ऐसा भी होता है, इसका भी ये फेस है। बहुत अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा जान के। वेरी गुड।